Hello, dear students. My name is Gurjot Singh. This is second lecture of chapter number 2, acid, bases and salts of 10th class. In the first lecture, we understand what is the taste of acids and what is the taste of base. The taste of acids is sour and the taste of bases is bitter. Okay, now we will further proceed in to understand the acids and the base. We will understanding the chemical properties of acid and bases. In the last lecture, I explained that when cation and anion get contact with each other and make a compound, a molecule, it may be acid, base or salt. Cation, what is a cation? Which have positive charge, and anion which have negative charge. And when anion and cation come closer to each other and make a molecule, it may be acid, base or salt. To understand what are acids and base, we took examples to understand them with the help of taste. But if we do not want to taste and we want to check the compound is acid or base, we will deal with the pH meter also. If the pH value of any compound is less than 7, then it is a acid. And if pH value is greater than 7, then it is a base. It is also a way to illustrate acids and base to each other. And the salts are totally separate from these acids and base. That will be discussed in the future of this chapter. So now we understand that if the pH value is less than 7, then it is a acid. If the pH value is more than 7, then it is a base. This is also a this is also a property of acid and bases. Okay, for example, any compound having pH value is 3.1, then it is referred to be acid. If the value of the compound is 8.1, for example, let's suppose, then it is a base. There are so many compounds or solutions or any solvents or solutes which have pH value is equal to 7. Then they are called as neutral solutions. They are nor acids and nor bases. Okay, in the properties of acids and base, first property is that how does the acid and base react with metal. जो एसिड्स होते हैं वो बेस होते हैं जो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप करेंगे. क्या करना होता है, एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें और फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैनुल डालें, मतलब जिंक की डालें. ये रहे जिंक ग्रैनुल जो भी इसमें डला हुआ है.
तो उसको इस सेटअप के जरिए, जो ये सेटअप बनाया गया है, उसे पानी में डाल दें तो उसमें से बबल्स क्रिएट होंगी। जो 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 पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इस तरह से बबल्स की फॉर्मेशन होगी, ये वाली। तो अगर हम इस बबल्स के आगे कोई कैंडल ले जाएं तो वहाँ पर एक बर्निंग होगी, एक पॉप अप साउंड के जैसे, जैसे कोई पटाखे चल रहे हों, जैसे क्रैकर्स चल रहे हों। दैट मीन्स इट इज़ ए हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस get catch fire in the when it plays in the form in the in with fire. Okay, first of all, this activity should take in the presence of teacher. If there is no teacher, you do not you may not allow to do this activity because it is dangerous for you. Okay, you can change your sulfuric acid with HCl, nitric acid and acetic acid also. These four जो कंपाउंड मैंने चार बताए हैं, ये चारों के चारों क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो क्या होता है इससे? इससे होता है, जो एसिड होता है वो मेटल के साथ मिलके एक तो साल्ट की फॉर्मेशन करता है और एक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। तो अगर ये वाली सेम एक्टिविटी किसी बेस के साथ की जाए, मीन्स जहाँ पर एसिड की जगह पर बेस को डाला जाए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला जो बेस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तब भी क्या होता है? हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। मीन्स एसिड एंड बेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल्स। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये सभी मेटल के साथ नहीं होता, किसी किसी मेटल के साथ होता है। जैसे हम गोल्ड लें तो गोल्ड के साथ ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ओके, इसके बाद और प्रॉपर्टी आ जाती है, जो मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजीन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते जब एसिड से। तो इसे समझने के लिए भी एक और एक्टिविटी है जिसमें ये वाला सेटअप किया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं इस तरह की, और एक में एसिड डालते हैं और दोनों में एसिड ही डाल लेते हैं एक बार। तो फिर उसमें कार्बोनेट्स डालते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है ये वाला, जो सोडियम यहाँ पर लिखा है ना, ये सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजीने कार्बोनेट। तो दोनों अगर डालते हैं तो HCl के साथ दोनों रिएक्ट करके एक तो साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ये बना साल्ट, क्योंकि इसमें सोडियम पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो उसके साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है, साथ के साथ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ऑब्जर्व करना हो तो इसे हम, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये यहाँ से जो आउट आ रही है, तो उसे लाइम वाटर के कांटेक्ट में लाया जाता है। लाइम वाटर के साथ मिलके ही वो वहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट्स बना देती है चूने के पानी के साथ। तो इस तरह से जो पता चलता है, जो जो एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम ये वाली सेम रिएक्शन किसी बेस के साथ करें तो वो भी सेम ही होता है। ओके, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब तक तो हमने इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया। अब एसिड एंड बेस को एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और HCl लिया। तो उन दोनों की अगर रिएक्शन करवाएं तो पहले तो मैं आपको इसमें से आयंस को डिटेक्ट करना बताता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव है, तो ये कटाइन है और ये एनाइन है। दूसरी तरफ HCl है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर नेगेटिव चार्ज है।
तो ये एक तो बात आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्शन में जब कभी भी रिएक्शन हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के साथ जाते हैं और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के साथ जाते हैं। इससे क्या पता चला कि Na है जो पॉजिटिव है वो Cl के साथ जाएगा और जो OH है नेगेटिव है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा। तो इस तरह से वाटर और साल्ट की फॉर्मेशन होती है। मीन्स ये जो साल्ट है ना ये भी तो आयन ही है, तो बेस प्लस एसिड मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। और इस तरह से वो वाला जो सॉल्यूशन होगा उसमें अब ना तो एसिड रहा और ना ही बेस रहा। अब उसमें क्या आ चुका है, साल्ट आ चुका है और वाटर आ चुका है। तो वो एसिड भी नहीं रहा और बेस भी नहीं रहा। तो इस वाले रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ के आगे बात करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ बात करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो तब भी साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि कॉपर ऑक्साइड, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के एसिड है जी, इसके साथ मिलके क्या बनाता है, एक तो साल्ट बनाता है। साल्ट कौन सा बनेगा, क्यूप्रिस क्लोराइड, ये 2 लेने पड़ेंगे और 2 बनेगा यहाँ पर, और साथ के साथ क्या बन जाएगा, एक वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो जो एसिड्स हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर भी साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बात करें तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं बेस, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन में किया था। तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आप इसे पॉज करके बाद में लिख भी लीजिएगा। जो दही और एसिड्स होते हैं उन्हें कॉपर और ब्रास के वेसल्स में क्यों नहीं रखा जाता। तो हमने पहले ही बात की थी कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करती है। तो अगर कर्ड होती है और सोर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे टमाटो केचप हो गई या अचार हो गया, आपके घर में कोई अचार होगा, तो इन अचार को कॉपर के वेसल में नहीं रखा जाता और ना ही ब्रास के वेसल में रखा जाए। फिर जो आपके घर में तांबे का बर्तन होगा और पीतल के बर्तन होंगे, उनमें ना तो आपके घर का कोई अचार को स्टोर करेगा और ना ही दही को स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पॉयल हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, वो आपको मतलब हो सकता है उसमें मोरियाँ निकल जाएं। वो जो आपका बर्तन है ना, लंबे समय तक पड़ा रहे तो उसमें छेद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। कर्ड एंड अदर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, देयरफॉर दे आर केप्ट इन द ब्रास, they are kept in the metal with the acid and to liberate gas and harmful product, thereby spoiling the food। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो स्पॉयल कर देगी फूड को, इस तरह से वो खराब कर देगी। सेकंड क्वेश्चन है, which gas is usually liberated when an acid react with metal, lusted with example। जैसे हमने अभी अभी किया था, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो आप इसे यहाँ पर पॉज करके लिख भी सकते हो। तो इस वीडियो को पॉज करके ऐसे लिख सकते हो। तो अभी हमने किया था कि जिंक ग्रेड्यूल है, जैसे वो रिएक्ट किए थे जब से एक्टिविटी पड़ी थी, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई थी और ये वाली रही इसकी जो रिएक्शन है। तो आप इसे पॉज करके यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड to produce effervescence, the gas evolved extinguish burning candle, write a balanced chemical equation। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने पहले बात की थी, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन गैस के साथ मिलके
क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो एक फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि इससे आग को बुझाया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ओके, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।